Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and safe, happy at your home. In this corona pandemic period, it is necessary to keep safety. So it is a difficult period for all of us. Today we will discuss about life process, class 10th. So let us continue. What is the definition of life process? There are some processes or biochemical reactions which take place in the body of living organisms and are essential for the survival of living organisms. So, in the body of living organisms, there are some chemical reactions which are continuously going on, and these are commonly known as life process, because these processes or biochemical reactions are very important for living organisms and for their survival. So these processes are commonly known as life process. For example, nutrition, respiration, excretion, control and coordination, etc. etc. The first life process, as it is given in your syllabus, is nutrition. So first of all, we will understand here that what is the meaning of nutrition. Nutrition is the process of taking food from surrounding, or in case of plants you can say that preparing or synthesizing food and utilizing it for energy and proper growth and development of body. So this process is called nutrition. न्यूट्रिशन एक्चुअली वह प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं, वो चाहे सराउंडिंग से लें या सेल्फ सिंथेसाइज करें और उसका यूटिलाइजेशन करें एनर्जी के लिए और प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. बिफोर डिस्कसिंग द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर इज अ टर्म न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? Nutrients are the chemical substances which are present in our food and these are also essential for living organisms. जो भी फूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो उनके लिए इसेंशियल हैं. उन्हीं केमिकल सब्सटेंसेज से उनको एनर्जी मिलती है और उनके बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है. तो इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेज को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. And some examples of nutrients are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. I think you will aware of all these things. आप पहले से ही ये सब चीज़ें जानते होंगे कि कौन कौन से nutrients हैं and the sources of these nutrients and what is the role of carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals for a living organism. तो कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, क्या सोर्सेज हैं, प्रोटीन्स का क्या रोल है, क्या सोर्सेज हैं, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इनका क्या रोल है और कौन कौन से सोर्सेज हैं, ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से ही. सो नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. दो तरह का जनरली न्यूट्रिशन हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक. So what is autotrophic nutrition? Auto, here you can see that auto means self, trophic means synthesize or prepare or taking food. So the mode of nutrition in which organisms prepare or synthesize their food itself is called autotrophic nutrition. कुछ organisms, especially plants, green plants, which can synthesize their food itself. प्लांट्स में हम देखते हैं कि वो अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं. तो इस तरह के हम न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर और सिंथेसाइज देयर फूड इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आर इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. तो ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं जो अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करते हैं. दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कह सकते हैं कि ये सब के सब ऑटोट्रॉफ्स हैं बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर फूड
itself, वो अपना फूड स्वयं बनाते हैं. So they are known as autotrophs. Second mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. Here also you can see the word heterotrophic is the combination of two words, hetero and trophs. Hetero means others and troph means nourishment. If organisms depend on other for their food, it is called the heterotrophic nutrition. So you can say that the mode of nutrition in which organisms depend on other organisms for their food, they can't synthesize their food itself, is known as heterotrophic nutrition. And examples are animals. Our animals are heterotrophs and they show heterotrophic nutrition. There are some plants like fungi, fungus, they are also in the category of heterotrophs. So animals cannot make their food themselves, they depend for food upon plants. Therefore, nutrition in animals is called heterotrophic nutrition and animals are also known as heterotrophs. तो एनिमल्स अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो फूड के लिए प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं और इस प्रकार के हम न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स. बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूछा है तो हेटरोट्रॉफ्स लिखते हैं. ऐसा नहीं करना. हेटरोट्रॉफ्स मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड and heterotrophic nutrition is a mode of nutrition. So I think there will be no any doubt. ऐसा कोई आपके पास confusion नहीं होना चाहिए. तो heterotrophic nutrition को फिर हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में जनरली. होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिज्म एंड पैरासिटिज्म और पैरासिटिक न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? In this mode of nutrition, organisms feed by ingesting solid organic matter, which is then digested and absorbed into their bodies. Or you can say that the mode of nutrition, heterotrophic nutrition, the mode of heterotrophic nutrition in which organisms take their food in solid form. तो heterotrophic nutrition में वह न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जनरली सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर फूड के रूप में लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और उनका यूटिलाइजेशन होता है. दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. जैसे जितने भी बड़े एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, अदर एनिमल्स, काऊ, बुफेलो, गोट्स, इन ऑल दीज एनिमल्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. सेकेंड, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफिटिज्म. दीज आर जनरली फाउंड इन सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉफ्स. देन व्हाट आर सैप्रोट्रॉफ्स? The organisms which prepare or take their food from dead and decaying organic matter. So saprotrophs feed on dead and decaying matter, including bacteria and fungi, which digest the food externally before the nutrients are absorbed. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया और फंजाई जो सड़े गले चीज़ों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वहीं ग्रो करते हैं और उन्हीं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं. एंड सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द थर्ड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिज्म. एक्चुअली इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से ये रेडीमेड फूड डिराइव कर लेते हैं और फिर वो न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं. ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द पैरासाइट ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट. ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर रहते हैं और उन्हीं से अपना रेडीमेड फूड लेते हैं, इसलिए इनको हम पैरासाइट्स भी बोलते हैं. जैसे लाइस है, टेपवर्म है, स्केरिस है, फ्लीज हैं, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. So the heterotrophic nutrition is divided into 3 categories: holozoic nutrition, saprotrophic nutrition and parasitic nutrition. Here you can also see next slide the types of nutrition. Autotrophs, auto means self, troph means feeding or synthesizing or nourishment. यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज. अभी हम जानेंगे कि कैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है. कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं. और हेटरोट्रॉफ्स क्या करते हैं? ऑब्टेन्स एनर्जी थ्रू
intake and digestion of organic substances which are obtained from plants or other animals. तो हेटेरोट्रॉफ्स अपने फूड के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं और उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं. सो इन ए मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड और सिंथेसाइज देयर फूड. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं या कैसे सिंथेसाइज करते हैं. देयर इज ए प्रोसेस that is known as photosynthesis. Photo means light and synthesis means to prepare, to make something. So plants prepare or synthesize their food in the presence of light. So the process is known as photosynthesis. Plants actually अपना food जो है light के presence में prepare करते हैं, synthesize करते हैं, इसलिए इस process का नाम रख दिया गया है photosynthesis. Photo means light. फोटो जो है लाइट का एक लिटरल नेक्स्ट मीनिंग है. तो फोटो लाइट और सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर करना. सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स सम बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग सोलर एनर्जी. यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रोड्यूस शुगर. शुगर मीन्स फूड विच सेलुलर respiration converts into ATP, the fuel used by all living things. The conversion of unusable sunlight energy into usable chemical energy is associated with the actions of the green pigment chlorophyll. Actually, for the process of photosynthesis, there are some raw materials that are required to prepare or synthesize food, and these raw materials are, first one is sunlight. sunlight की ज़रूरत है. सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है. थर्ड क्लोरोफिल की ज़रूरत है. एंड फोर्थ वन इज वाटर. तो ये कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए चाहिए. और आप फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर और सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, and in the presence of chlorophyll and sunlight. This process is called photosynthesis. So in photosynthesis these four raw materials are required, and here you can see a chemical equation, a brief chemical equation, the overall reaction of the process of photosynthesis. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll, they make sugar, carbohydrate. Here this is glucose, then oxygen and water. So oxygen is the byproduct and the main product is sugar or carbohydrate in the form of glucose. And this is the process due to which the oxygen is present in our surrounding or in our environment. हमारे environment में या atmosphere में जो ऑक्सीजन है वो इसी प्रोसेस के कारण है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यदि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस न हो तो फिर हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा. तो ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ प्रोड्यूस होता है. और कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल द प्लांट्स आर डाइड. सभी प्लांट्स मर जाएं तो क्या होगा? देन सर्टेनली ऑल द एनिमल्स विल आल्सो डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और फिर ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, और जो भी ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है वो एनिमल्स के द्वारा यूज कर लिया जाएगा और फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनिमल भी डाई कर जाएंगे. तो फोटोसिंथेसिस हमारे लिए दोनों तरीके से इम्पॉर्टेंट है. एक तो फूड बना रहे हैं प्लांट्स अपने लिए भी, और उसी फूड को फिर हम भी यूटिलाइज करते हैं, एनिमल्स भी यूटिलाइज करते हैं. साथ में वो एक बहुत वैल्यूएबल सब्सटेंस दूसरा चीज़ भी बना रहे हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन. तो ये एक ओवरऑल रिएक्शन है जिसके थ्रू आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. हालांकि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जब आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा. तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं और इसका सिंपल डिफिनीशन एंड दिस ओवरऑल केमिकल रिएक्शन जो है. हियर यू कैन आल्सो सी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ आप देख सकते हैं कि एक प्लांट को दिखाया गया है और फिर आप सनलाइट देख रहे हैं कि मिल रहा है यहाँ, और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड ये सराउंडिंग से ले रहे हैं.
You know that there are very small pores in large number, tiny pores which are present in the leaves that are known as स्टोमेटा। आपको मालूम है कि स्टोमेटा होते हैं, उनके थ्रू CO2 प्लांट बॉडी के अंदर जाता है, सेल्स के अंदर, फिर सनलाइट मिलता है। क्लोरोफिल ऑलरेडी उनके अंदर प्रेजेंट है। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ग्रीन कलर पिगमेंट है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। और ये कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल में, स्पेशली उस रीजन में जो ग्रीन हमको दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे भी रीजन हो सकते हैं प्लांट्स के जो ग्रीन ना हो, जैसे रूट वगैरह आप देख सकते हैं, तो उन सेल्स में जनरली क्लोरोफिल नहीं रहता है। लेकिन जो भी पार्ट्स ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, जैसे लीव्स हैं या कुछ ब्रांचेज हो सकते हैं, तो उन सेल्स में समझिए कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ एक सिंपल प्लांट सेल का डायग्राम दिया है, फिर क्लोरोप्लास्ट को बताया गया। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो जो क्लोरोफिल है रॉ मटेरियल, ये ऑलरेडी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, और जो एनर्जी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो सनलाइट के रूप में मिल रहा है सन से, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो 3 रॉ मटेरियल यहाँ अवेलेबल हुए, और चौथा जो रॉ मटेरियल है वाटर, वो प्लांट को सॉइल के थ्रू मिलता है। वाटरिंग जब हम प्लांट्स की करते हैं तो चारों रॉ मटेरियल्स इस प्रकार प्लांट्स को मिल जाते हैं, और फूड मेकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है प्लांट सेल के अंदर? इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है, क्योंकि क्लोरोफिल वहीं प्रेजेंट है। तो ये भी याद रखना है, यू शुड आल्सो रिमेंबर दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ए सेल ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल, और इस प्रकार ये फूड सिंथेसिस का काम करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेनली ये जो मेन रॉ मटेरियल्स हैं, जैसा अभी आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि जो फूड के रूप में शुगर बन रहा है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये शुगर एक्चुअली जो है CO2 और वाटर के कारण ही बनता है, इसलिए यहाँ CO2 और वाटर ही दिखाया गया है। सनलाइट को ऐसे लिखा गया है ऊपर से, नीचे आप यहाँ चाहें तो क्लोरोफिल लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे जनरली इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा बुक में। और क्लोरोफिल का काम क्या है? इस सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। इस सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। तो क्लोरोफिल का यही रोल है कि क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी विच इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड द मेन रॉ मटेरियल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन और शुगर फॉर्मेशन एज फूड। तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं इस स्लाइड में। थैंक यू।